بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ میں آپ کو اردو گرامر کے لیکچر نمبر 22 میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ عنوان کی طرف جانے سے پہلے چند سابقہ معلومات۔ سابقہ واقفیت دیکھ لیں۔ اسم کی اقسام معنی کے لحاظ سے ہم نے اسم کلمے کی اقسام پڑھی، جس میں ہم نے اسم فعل اور حرف کے بارے میں پڑھا، اور ہم نے اسم کے بارے میں پڑھا کہ اسم کسی بھی چیز، جگہ یا شخص کے نام کو کہتے ہیں۔ کوئی بھی نام اسم کہلاتا ہے۔ اسی طرح ہم نے اسم کی اقسام معنی کے لحاظ سے پڑھی، تو اسم کی اقسام معنی کے لحاظ سے اسم نکرہ اور اسم معرفہ ہیں۔ پہلے ہم نے اسم معرفہ کے بارے میں پڑھا، اسم معرفہ خاص نام، اور اسی طرح ہم نے اسم معرفہ کی اقسام کے بارے میں پڑھا، جس میں اسم ضمیر، اسم اشارہ، اسم علم، اسم موصول، ٹھیک ہے، جو ہم پچھلے لیکچر میں پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم اسم نکرہ کے بارے میں، یعنی اسم نکرہ کی اقسام کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو اسم نکرہ کی اقسام کے بارے میں پڑھنے سے پہلے اسم نکرہ کو جاننا بہت ضروری ہے۔ اسم نکرہ کہتے ہیں عام نام کو، ٹھیک ہے، کسی بھی جگہ، شخص یا چیز کے عام نام کو اسم نکرہ کہتے ہیں۔ اسم نکرہ کا دوسرا نام اسم عام بھی ہے، ٹھیک ہے، تو انگلش میں اس کو کامن ناؤن بھی کہتے ہیں۔ تو بیٹا اسم نکرہ کی اقسام دیکھ لیں۔ تو اسم نکرہ کی کل 5 اقسام ہیں۔ سلیبس کے لحاظ سے اسم نکرہ کی کل 5 اقسام ہیں۔ دیکھیں، اسم مصغر، اسم تصغیر۔ اسم مصغر اور اسم تصغیر جو ہے وہ ایک ہی نام ہے۔ اسم مصغر کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا پن، یعنی ایسا اسم جس میں چھوٹائی بیان کی جائے۔ اسی طرح دوسرا ہے اسم مکبر۔ تو اسم مکبر وہ ہوتا ہے جس میں بڑا پن ظاہر کیا جائے، اور اسم اعلیٰ جس میں اوزار کے بارے میں، اوزار کے نام کے بارے میں بتایا جائے۔ اسی طرح اسم ظرف ہے چوتھی قسم، جس میں ظرف زمان اور ظرف مکان اس کی اقسام آتی ہیں، مگر اسم ظرف میں جگہ یا وقت کا تعین کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اسم صوت ہے۔ تو اسم صوت، صوت سے ظاہر ہے آواز، تو اسم صوت میں آوازوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ تو یہ تھی ہماری سابقہ واقفیت۔ تو آج ہم سبق کی طرف چلتے ہیں۔ سبق ہمارا جو ہے وہ اسم نکرہ کی، آج کا ہمارا جو عنوان ہے وہ اسم نکرہ کی اقسام میں سے سب سے پہلی قسم کون سی تھی؟ اسم مصغر یا اسم تصغیر۔ اس کے 2 نام ہیں، ٹھیک ہے۔ صغیر جو ہے وہ عربی میں چھوٹے کو کہتے ہیں، تو اس لیے اسم مصغر یا اسم تصغیر کا مطلب ہے چھوٹا پن یا چھوٹائی، ٹھیک ہے۔ کیا مطلب ہے؟ چھوٹا پن یا چھوٹائی۔ کیا مطلب ہے؟ چھوٹا پن یا چھوٹائی۔ تو یہ چند فقرات دیکھیں۔ بلی پیالے میں دودھ پیتی ہے۔ تو فقرات دیکھیں۔ بلی پیالی میں دودھ پیتی ہے۔ میرے گھر کے پاس ایک پہاڑی ہے۔ ہانڈی پک چکی ہے۔ اب یہ 3 فقرات دیے گئے ہیں، اور اس میں چند الفاظ دیے گئے ہیں جو اسم مصغر ہیں۔ تو وہ کون سے الفاظ ہیں؟ پیالی، پہاڑی، ہانڈی۔ تو ہمیں کیسے پتہ چلا کہ یہ اسم مصغر ہیں؟ تو ہمیں ایسے پتہ چلا کہ پیالی جو ہے وہ چھوٹی ہوتی ہے اور پیالہ بڑا ہوتا ہے، اس لیے پیالے کی جگہ پیالی استعمال کیا گیا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ اسم مصغر ہے۔ پیالی سے مراد چھوٹا سا پیالہ، ٹھیک ہے، یعنی چھوٹا سا پیالہ۔ پیالے کی ایک قسم ہے مگر چھوٹا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح پہاڑی کا استعمال کیا گیا ہے جملے میں۔ تو پہاڑی سے مراد کیا ہے؟ چھوٹا سا پہاڑ۔ پہاڑی سے مراد کیا ہے؟ چھوٹا سا پہاڑ۔ تو یہاں پہ چھوٹائی بیان کی ہے، پہاڑ کی چھوٹائی بیان کی ہے، پیالے کی چھوٹائی بیان کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہانڈیا ہے۔ تو ہانڈیا سے چھوٹی سی ہانڈی، یعنی یہاں پہ ہانڈی کی چھوٹائی بیان کی گئی ہے، ہانڈیا کہا گیا ہے۔ تو یہ سب کیا ہیں؟ اسم مصغر ہیں۔ تو پس ثابت ہوا کہ، کیا ثابت ہوا بیٹا؟ کہ اسم تصغیر یا اسم مصغر کا مفہوم، کیا ثابت ہوا کہ اسم تصغیر یا اسم مصغر کا مفہوم کیا ہے؟ کہ وہ اسم، کون سے اسم؟ وہ اسم جس میں کسی نام کی نسبت چھوٹائی کے معنی پائے جائیں، یعنی کسی نام کی نسبت کس کے معنی پائے جائیں؟ چھوٹائی کے معنی پائے جائیں۔ جیسے کہ دیکھیں، پہاڑ ایک نام ہے، اس کی طرف نسبت کی جا رہی ہے پہاڑی کی، تو پہاڑی کیا ہے؟ چھوٹائی ہے نا، چھوٹائی بیان، پہاڑ کی چھوٹائی بیان کی گئی ہے، ٹھیک ہے، اس کا چھوٹا پن ظاہر کیا گیا ہے۔
इसी तरह ये क्या है, इसमें तस्गीर या इसमें मुसग़र हैं। या इसमें तस्गीर वो इसम है जिसमें छोटा होने के मानी पाए जाएं, यानी छोटा होने के मानी पाए जाएं। यानी जब हम किसी चीज़ की तरफ निस्बत लेकर उसका नाम लेकर फिर उसमें छोटापन ज़ाहिर करते हैं तो वो इसमें तस्गीर होता है। कैसे इसमें तस्गीर होता है? जैसे पहाड़ से पहाड़ी, ठीक है, पहाड़ी क्या है, पहाड़ के छोटा होने को जाहिर कर रही है कि एक बड़ा पहाड़ होता है, जब छोटी सी हम पहाड़ी देखते हैं तो हम कहते हैं पहाड़ से हम पहाड़ी कहते हैं कि ये तो पहाड़ी है। क्यों कहते हैं हम? क्योंकि ये उसका हम छोटापन जाहिर कर रहे होते हैं कि पहाड़ तो बहुत बड़ा होता है मगर पहाड़ी जो है वो छोटी है, ठीक है। तो इसमें तस्गीर भी वो इसम है जिसमें छोटा होने के मानी पाए जाएं। तस्गीर के मानी ही छोटा होने के हैं, ठीक है। इसमें तस्गीर वो इसम है जिसमें किसी चीज़ का छोटा होना ज़ाहिर हो, यानी किसी भी चीज़ का छोटा होना ज़ाहिर हो तो वो क्या है, इसमें तस्गीर है। तो साबित क्या हुआ कि इसमें तस्गीर वो इसम है जिसमें छोटाई या छोटापन ज़ाहिर किया जाए, ठीक है। यानी किसी चीज़ की निस्बत जो है उसकी छोटाई के मानी उसमें पाए जाएं। जैसे पहाड़ से पहाड़ी, पहाड़ी क्या है, उसकी पहाड़ की छोटी किस्म है, ठीक है। तो बेटा आगे देखें, चंद मशहूर अस्माए मुसग़र, ठीक है। तस्गीर यानी इसमें मुसग़र या इसमें तस्गीर। अब इसमें मुसग़र या इसमें तस्गीर देखें, ये अल्फाज दिए गए हैं, फिर इनको मुसग़र यानी इसमें तस्गीर में बयान किया गया। इसी तरह अल्फाज और इसमें मुसग़र, फिर अल्फाज और इसमें मुसग़र। ये आपकी किताब उर्दू क़वाइद व इंशा के सफ़ा नंबर 21 से लिया गया है ये सफ़ा, ठीक है। तो आपने इसको ज़रूर पढ़ना है। पंखा से देखें पंखिया, थाल से थाली, घर से घरौंदा। अब ये सब की छोटाई पाए गए ना। अब देखें पंखा बड़ा होता है, पंखिया वो जो हाथ से हिलाई जाती है उसको कहते हैं। फिर थाल बड़ा होता है, थाली छोटी होती है, ठीक है। तो इसमें छोटापन पाया गया। घर बड़ा होता है और घरौंदा क्या होता है, छोटा होता है। इसी तरह पलंग है तो उससे पलंगड़ी, ठीक है। किताब से किताबचा, बच्चा से बचूंगड़ा, दुख से दुखड़ा, डिब्बा से डिबिया, मुख से मुखड़ा, पंख से पंखड़ी, शाम से संपोलिया, छतर से छतरी, धम से धुमची, ताक से ताकचा, भाई से भैया, आरा से आरी, देग से देगची, धर से दरीचा। अब कहें चावल जो हैं वो देग में पकाए गए हैं, ठीक है। तो हम कहेंगे चावल जो हैं वो देगची में पकाए गए हैं। तो देगची में थोड़े से चावल बनते हैं ना, तो वो देग की छोटी किस्म होगी, देगची होगी, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आपको इसमें मुसग़र के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा। आपने अपनी किताब सफ़ा नंबर 21 को भी ज़रूर पढ़ना है ताकि आपको तफसील से इसकी समझ आ जाए। आगे देखें तो दूसरा है हमारे पास इसमें मुकब्बर। इसमें मुकब्बर क्या है? इसमें नकरा की दूसरी किस्म है। इसमें नकरा की दूसरी किस्म क्या है? इसमें मुकब्बर। तो इसमें मुकब्बर कहते हैं बड़ापन या बड़ाई, बड़ापन या बड़ाई, ठीक है। चंद फ़िक्रात देखिए। बाज़ लोग बात का बतंगड़ बना देते हैं, घड़ियाल बज रहा है, शहतूत एक बेहतरीन सेहत बख्श फल है। तो बेटा यहाँ पे आप देखें कि बतंगड़, ठीक है, घड़ियाल और शहतूत, ये ऐसे अल्फाज हैं जो बढ़ाई बयान कर रहे हैं। जो क्या बयान कर रहे हैं? बढ़ाई बयान कर रहे हैं। बतंगड़ किसकी बढ़ाई बयान कर रहा है? बात की। बतंगड़ किसकी बढ़ाई बयान कर रहे हैं? बात की, ठीक है। इसी तरह घड़ियाल बड़ा सा होता है ना, घड़ियाल बड़ा, ठीक है। तो जब हम छोटा करेंगे तो वो क्या हो जाएगी? घड़ी। क्या हो जाएगी? घड़ी। तो घड़ियाल क्या है? बड़ापन ज़ाहिर हो रहा है। इसी तरह शहतूत देखें तो तूत जो है वो तूत एक क्या है? एक खुश्क मेवा है, ठीक है। तूत क्या है? एक खुश्क मेवा है। तो शहतूत जब हम कहेंगे तो वो उससे उम्दा, एक तूत एक आम सा मेवा होता है ना, छोटा सा मेवा होता है, और शहतूत जो होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं ना, ठीक है। आपने अक्सर देखे भी होंगे, खुश्क मेवे में ये ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं। तो तूत क्या है? छोटाई है। तो तूत की बढ़ाई क्या बयान कर रहे हैं? शाहतूत। इसी तरह घड़ी जो है वो छोटापन है, छोटापन जो है घड़ियाल जो है वो बड़ा है। तो बड़ा किसको जाहिर कर रहा है? इसमें मुकब्बर को। इसी तरह बात क्या है? वो बात है, मगर बतंगड़ क्या हो जाएगा? इसमें मुकब्बर, क्योंकि ये बढ़ाई बयान हो रही है इन अल्फाज में, ठीक है।
फिर नीचे देखें बतंगड़, घड़ियाल, शहतूत। इन अल्फाज में बढ़ाई बयान की गई है। ठीक है, किसकी बढ़ाई बयान की गई है? यानी बात से बतंगड़, घड़ी से घड़ियाल, तूत से शहतूत के मानों में बढ़ाई पैदा की गई है। ठीक है, बात के मानों में जब बढ़ाई पैदा की तो बतंगड़, घड़ी के मानों में बढ़ाई पैदा की तो घड़ियाल, तूत के मानों में बढ़ाई पैदा की तो शहतूत। ठीक है, तो इसलिए इसमें मुकब्बर क्या हुआ? पस साबित हुआ कि क्या साबित हुआ कि इसमें मुकब्बर वो इसम है जिसमें किसी चीज़ की निस्बत, इधर की जो है वो मिस है तो इधर किसी चीज़ की निस्बत बढ़ाई के मानी पाए जाएं, इसमें मुकब्बर कहलाता है। या इसमें मुकब्बर वो इसम है जिसमें बढ़ाई के मानी पाए जाएं। कबीर के मानी ही बड़ापन के होते हैं। जैसे आपको कहा था ना, सगीर जो है वो छोटे को कहते हैं और कबीर किसको कहते हैं? बड़े को कहते हैं। तो नाम से ज़ाहिर है, नाम इसमें तस्गीर कहेंगे तो सगीर किसके? छोटापन है। और जब आपको 5 जुमले दिए जाएं और आपको समझ ना आ रही हो तो आप नाम पे ज़रूर फोकस किया करें कि नाम से वो क्या ज़ाहिर हो रहा है। ठीक है, तो नाम से ही क्या ज़ाहिर हो रहा है? बड़ापन ज़ाहिर हो रहा है। कबीर बड़े को कहते हैं। तो इसमें मुकब्बर किसे कहते हैं? कि वो इसम जिसमें किसी चीज़ की निस्बत बढ़ाई के मानी पाए जाएं। किसी चीज़, इधर किसी चीज़ की निस्बत, इधर की आता है। ठीक है, किसी चीज़ की निस्बत बढ़ाई के मानी पाए जाएं, क्या कहलाता है? इसमें मुकब्बर। ठीक है, यानी हम ये भी कह सकते हैं कि इसमें मुकब्बर जो है वो क्या है? जिसमें बढ़ाई के मानी पाए जाएं। जिसमें किसके मानी पाए जाएं? बढ़ाई के मानी पाए जाएं। कबीर का मानी ही बड़ा होता है, तो इसलिए साबित हुआ कि इसमें मुकब्बर में बढ़ाई के मानी पाए जाते हैं। ठीक है, आगे देखें चंद मशहूर अस्माए मुकब्बर। ये भी आपकी किताब उर्दू क़वाइद व इंशा के सफ़ा नंबर 22 से पेज लिया गया है। ठीक है, आप वहाँ भी देख सकते हैं। तीर, शाह तीर। ठीक है, तीर, शाह तीर। लाठी, लठ। टोली, टोला। अब टोली छोटी सी होती है, टोला बहुत बड़ा होता है। जोर और शाह जोर। शाह जोर, जोर छोटा और शाह जोर बड़ा, जिसको हम कहेंगे। अब टोपी, और टोपी को अब बड़ा करके बयान करेंगे तो टोप। इस तरह काज, महाकाज। महाकाज जो है ना, ये महा लफ्ज़ हिंदी से आया है। ठीक है, महाकाज यानी बहुत बड़ा, काज और महाकाज। राह, शाहराह। ठीक है, राह छोटी सी रास्ता होती है, जैसे शाहराह रेशम है, ये बड़ा रास्ता है। ठीक है, तो इसको हम शाहराह रेशम कहते हैं। इसी तरह राजा, महाराजा। राजा छोटा राजा होते हैं और महाराजा जो है वो बहुत बड़ा महाराजा होते हैं। और महाज कहाँ से आए हैं? हिंदी से आए। देव, महादेव। लकड़ी, लकड़। लकड़ी छोटी सी होती है और लकड़ बड़ी सी होती है। इसी तरह दर्रा, शाह दर्रा। बाज, शहबाज। सवार, शाह सवार। रानी, महारानी। छतरी, छतर। ठीक है, तो ये ऐसे अल्फाज बताए गए हैं जिनसे मुकब्बर बनाया गया है। तो आपको आसानी से समझ आ गई होगी कि अस्माए मुकब्बर कौन से अस्मा होते हैं। ऐसा इसम जिसमें किसी भी लफ्ज़ की क्या बयान की जाए? बढ़ाई बयान की जाए, बड़ापन ज़ाहिर किया जाए। तो बेटा हम अहम नुकात की तरफ आते हैं। ठीक है, तो आज हमने जो सबक पढ़ा उसमें हमने इसमें नकरा की इकसाम के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने इसमें मुसग़्ग़र यानी इसमें तस्ग़ीर के बारे में पढ़ा, जिसका मतलब छोटापन है। और इसमें मुकब्बर जिसका बड़ा, ठीक है, यानी बढ़ाई। इसमें ज़र्फ़ जिसमें जगह और वक्त का जिक्र किया जाता है। इसमें आला जिसमें औज़ार का नाम बताया जाता है। और इसमें सोच जिसमें आवाज़ों के नाम होते हैं। ठीक है, तो आज हमने इसमें नकरा की जो किस्म पढ़ी उसमें हमने इसमें मुसग़्ग़र या इसमें तस्ग़ीर के बारे में पढ़ा। तो बेटा इसमें मुसग़्ग़र या इसमें तस्ग़ीर वो इसम है जिसमें उसके छोटा होने के मानी पाए जाएं। इसमें तस्ग़ीर या इसमें मुसग़्ग़र कहलाता है। चंद मिसालें भी आपको दी, मगर मज़ीद आपको मिसालें दे दूँ। ठीक है, देखें घर से घरौंदा। अब एक आपको कॉमन सी चीज़ एक मैं बता दूँ कि बेटा आप देखें कि घर के आगे हमने लाइका लगाया तो क्या बन गया? घरौंदा। ठीक है, तो आप देखेंगे कि इसमें मुसग़्ग़र जो है इसमें ज़्यादातर लाइके, कुछ अल्फाज के आगे क्या लाइके लगाए गए हैं तो वो इसमें मुसग़्ग़र बन गए हैं। ठीक है, ये एक कॉमन सेंस वो मैं उस ज़रिए आपको बता रही हूँ। ठीक है, देखें भाई से भैया, दुख से दुखड़ा। ठीक है, दुख के साथ रे अलिफ लगा दिया, लाइका भी बन गया। संदूक से संदूकचा। ठीक है, पंख से पंखड़ी। ठीक है, धर से दरीचा। धर से, ये देखें, धर से दरीचा
وغیرہ، ٹھیک ہے. اسی طرح اس میں مکبر دیکھیں، یعنی وہ اسم جس میں کسی شخص، جگہ یا چیز کا بڑا ہونے کے معنی پائے جائیں. کس کے معنی پائے جائیں؟ بڑا ہونے کے معنی پائے جائیں. تو بیٹا دیکھیں، اب اس میں آپ دیکھیں ساپ کے زیادہ تر، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہیں پہ ساپ لائکے استعمال ہوئے ہوں گے، کہیں پہ ساپ کے. دیکھیں، لاٹھی سے لٹ، ٹھیک ہے، گھڑی سے گھڑیال، چھتری سے چھتر، راہ سے شاہراہ. اب اس میں دیکھیں راہ سے شاہراہ میں کیا استعمال ہو رہا ہے؟ کچھ الفاظ میں کیا استعمال ہوتا ہے؟ ساپ کا. راہ سے شاہراہ بن گیا. بات سے بتنگڑ، زور سے شاہ زور، اس میں بھی ساپ کا استعمال ہوا ہے. تو چند ایسے الفاظ ہوتے ہیں جس میں اس میں مکبر میں ساپ کا استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس سے وہ اس میں مکبر بھی بن جاتے ہیں. یہ ایک کامن سی بات میں آپ کو بتا رہی ہوں، یہ آپ کے سبق سے ہٹ کر ایک، تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ سکے. تو ٹھیک ہے بیٹا، تو آج ہم نے اس میں نکرہ کی اقسام میں اس میں مصغر اور اس میں تصغیر، یعنی یہ دونوں ایک ہی نام ہے، یعنی چھوٹا پن، اور اس میں مکبر بڑا پن کے بارے میں ہم نے پڑھا. امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس لیکچر کی بہت اچھے سے سمجھ آئی ہوگی. اگر سمجھ نہیں آئی تو آپ نے لیکچر کو بار بار دیکھنا ہے اور سننا ہے، ٹھیک ہے. بیٹا آپ کا جو جولائی کا کام تھا، جو آپ نے پریکٹس رجسٹر پہ کرنا تھا، وہ الحمدللہ آج تک مکمل ہو چکا ہے. تو آپ نے ایسے کرنا ہے کہ وہ کام جتنا بھی ہے، کل 24 تھے، یہ آج 24 تھے، تو 24 جولائی کو آپ نے یہ کام جمعے والے دن اسکول میں سبمٹ کروانا ہے، تاکہ اس کو چیک کر کے آپ کا جولائی کا منتھلی رزلٹ بن سکے. اور دوسری بات یہ کہ ابھی جو میں آپ کو کام دوں گی، وہ میں کوشش کروں گی کہ آپ کی اردو قواعد و انشاء، جس میں کچھ ورک شیٹ کا استعمال کیا گیا ہے، یعنی عنوان کے بعد کچھ ورک شیٹ کا استعمال کیا گیا ہے، تو وہی ورک شیٹ آپ کو دوں گی کام کرنے کے لیے. آپ نے صفحہ نمبر 21-22 کو پڑھنا ہے، اور صفحہ نمبر 23 جو ہے 21-22 کو پڑھنے، اور صفحہ نمبر 25 کو آپ نے کتاب پہ ہی حل کرنا ہے، ٹھیک ہے. کتاب پہ ہی آپ نے اس میں مصغر کا استعمال کرتے ہوئے خالی جگہ پر کیجئے، اور درجہ ذیل اسماء میں سے اس میں مکبر تلاش کیجئے. یہ آپ نے کتاب پہ کرنا ہے. انشاءاللہ جب آپ اسکول آئیں گے تو میں آپ کی کتاب چیک کروں گی، ٹھیک ہے. اوکے بیٹا، اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھنا ہے.